Hello friends, my name is Raghav. How are you? Hope you all are safe and fine. Today in this video we are going to discuss the most important questions of chapter electrochemistry and solutions. These are chemistry chapters of class 12th. In this video I am going to discuss the previous year questions of class 12 from the paper chemistry, and these questions will also be equally important for JEE and NEET. So let's come on towards the first question. The question says difference between ideal and non-ideal solutions. Now first question says that we have to difference, okay, between the ideal and non-ideal solution. So yes, ideal solution and non-ideal solution. The solutions that follow Raoult's law are ideal solutions, ठीक है. Non-ideal solutions वो solutions जो Raoult's law को follow नहीं करते. Delta V mixation is equals to 0. इसमें non-ideal solution में delta V mixation 0 के बराबर नहीं होगा. Similarly, 0.3 in ideal solution delta H mixation is equals to 0. Where delta H mixation is not equals to 0 in case of non-ideal solution. So P is equals to PA plus PB, means P means total pressure. So in non-ideal solutions P is not equals to PA plus PB. Now next question is what are colligative properties and types of colligative properties. ठीक है, colligative properties क्या चीज है और types उसकी क्या है. So colligative properties, these are those properties which do not depend on the nature of solute, they only depend on the amount of solute taken. ठीक है, so colligative property वो property है जो क्या है, ये देखती है कि आपने solute की मात्रा कितनी ली है, वो ये नहीं देखती कि आपने solute किसी भी सॉल्वेंट में कौन सा लिया है. ठीक है, इट डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, इट्स जस्ट डिपेंड ऑन द amount of solute taken. ठीक है, so next we are going to discuss with 4 types of colligative properties. We have to also given this in the question that we have to tell that 4 types of colligative properties. So the first property is relative lowering of vapor pressure, then elevation in boiling point, depression in freezing point, then osmotic pressure. So these are the 4 colligative properties which we had also discussed in our previous videos. So let's come to the question number 3rd. The conductivity of 0.20 m KCl solution is 0.025 Simon centimeter square. Calculate molar conductivity. ठीक है, सो हमें क्या दिया हुआ है कि किसी भी मतलब KCl सोल्यूशन है, वी हैव अ KCl सोल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन मींस मोलैरिटी हमें 0.20 दी हुई है. ठीक है, और हमें उसकी कंडक्टिविटी भी दी हुई है इतनी. वी हैव टू फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी. सो लेट्स कम ऑन टूवर्ड्स द सोल्यूशन. इस केस में क्या है, हमें दिया हुआ है, इस केस में हमें क्या दिया हुआ है कि हमें दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया हुआ है कि हमें कप्पा दिया हुआ है. कप्पा मीन्स कंडक्टिविटी. आपको कितनी दी हुई है, यू हैव टू गिवन अ कंडक्टिविटी दैट इज 0.025. नाउ यू हैव also the concentration that is molarity that is going to be 0.20 m. ठीक है, now we know that for molar conductivity lambda m is denoted by molar conductivity is denoted by lambda m. So lambda m is equals to kappa into 1000 upon C, where C is concentration. So lambda में यहाँ से कितना आ जाएगा, 0.025 into 1000 upon 0.20. नाउ इस केस में लैम्डा एम कितना आ जाएगा, हम इसको नीचे ले जाते हैं, 1000 इंटू 1000. ठीक है, ये 1000 से 1000 गया, नीचे आ जाएगा 20/100. ठीक है, सो इस यहाँ पे हम लैम्डा एम सॉल्व कर लेते हैं. लैम्डा एम सॉल्व करने पे बाद मेरे पास आता है 25 इंटू 100 अपॉन 20. जे इससे कट गया, 2 1 2 2 5 20. ठीक है, सो मेरे पास आंसर कितना आ गया, लैम्डा एम इज गोइंग टू बी 125 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. ठीक है, सो दिस इज द लैम्डा एम दैट आई हैव फाउंड. ठीक है, सो नाउ फोर्थ क्वेश्चन भी देख लेते हैं. फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विद इनफाइनाइट डिल्यूशन। वो बोल रहा है कि हमारे पास जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस लेते हैं, ठीक है, तो उस केस में मुझे पूछ रहा है कि हम मोलर कंडक्टिविटी या अब जब हम इनफाइनाइट डिल्यूशन कर लेते हैं किसी भी चीज़ में, मतलब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी डाल देते हैं, तो हम उसकी मोलर कंडक्टिविटी क्यों नहीं फाइंड कर सकते। तो देख लेते हैं। हमने देखा था कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, उसके लिए तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ग्राफिकली प्लॉट कर सकते हैं, बट हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमारे पास जो ग्राफ होता है ना, तो ग्राफ इज लाइक दिस, कि आपको क्या है, मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी नहीं। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड हियर इज योर लैम्डा एम। तो आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में वो जो है वो मिलेगी ही नहीं। तो इसको हमने किया था कोल्स लॉ के थ्रू, हमने ना इसको फाइंड किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, आई थिंक, यस। सो नेक्स्ट इज डिफाइन कोल्स लॉ विद एग्जाम्पल। कोल्स लॉ क्या है? कोल्स लॉ क्या है? द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, हमें पता है द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इज द सम ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स अनायंस एंड कैटाइंस। ठीक है, हमने इतना पढ़ा था। ठीक है, एग्जांपल हमें पता है कि हम लैम्डा नॉट NaCl ले सकते हैं, दैट इज जैसे हम ले सकते हैं यहाँ पे लैम्डा नॉट NaCl। तो कैसे लिखोगे आप? लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। ठीक है, so this is for Coles law. ठीक है, so the sixth question says why do we hear a fizzing sound on opening a soda bottle? ठीक है, जब आप सोडा की बोतल को ओपन करते हो तो आपको फिजिंग साउंड तो सुनाई देती होगी, यू हैव ऑल्सो नोटिस्ड। ठीक है, सो सोडा बोतल को हम बोलते हैं कार्बोनेटेड बीवरेज। तो इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन इज in a carbonate beverage CO2 is dissolved in water under high pressure. When we open the cap, we are releasing the pressure. As the pressure falls, the amount of gas CO2 dissolved also reduces as per Henry law. ठीक है, सो बोल रहा है कि कार्बोनेट बीवरेज मीन्स सोडा की बोतल में जो होता है ना, जो CO2 हमारी गैस होती है ना, जो हमारे पास CO2 गैस वो हाई प्रेशर पे मतलब डिजोल्व हुई होती है वाटर में। ठीक है, जब हम उसका ढक्कन लगा हुआ होता है, जब हम उसका कैप को ओपन करते हैं ना, तो क्या होता है, जो गैस ना निकलनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो प्रेशर भी कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे तो पहले तो वो जो कैप था आपका, उसने प्रेशर लगाया हुआ था। ठीक है, वो अब हमने कैप खोल दिया, मीन्स हमने प्रेशर भी रिलीज कर दिया, वो गैस भी अब ऊपर ऊपर जाती रहेगी। तो जैसे ही प्रेशर गिर गया, मतलब प्रेशर डाउन हो गया, उस वैसे ही CO2 भी जो मतलब उस वाटर में डिजोल्व है, उस बोतल में डिजोल्व है, वो भी कम हो जाएगी एज पर हेनरी लॉ। हेनरी लॉ वी विल डिस्कस इन द लास्ट क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन इज व्हाई डू पीपल लिविंग एट हायर एल्टीट्यूड्स हैव पुअर मेमोरी? कि जो लोग हायर एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं, मतलब पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, उनकी प्योर मेमोरी क्यों होती है? ठीक है, सो at higher altitudes, atmospheric pressure is very less. The amount of oxygen gas dissolved in air is also very less. Hence, the brain cells and other cells of our body are starved of oxygen, which over a period of time reduces the efficiency of brain, leading to the poorest memory. तो हायर एल्टीट्यूड्स पे क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बहुत ज़्यादा कम होती है, इसका मतलब ऑक्सीजन भी उसमें डिजॉल्व जो होगी वो भी बहुत ज़्यादा कम होगी। इसके कारण जो ब्रेन सेल्स है उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो ऑक्सीजन के भूखे रह जाएंगे। तो वो अगर ऐसा चलता रहा तो क्या होता है, हमारे ब्रेन की एफिशिएंसी कम हो जाती है। ठीक है, सो उसके कारण पुअरेस्ट मेमोरी होती है। ठीक है, मतलब सोच शक्ति कम हो जाती है। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन। नाउ इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड स्टे सेफ।